مسئلے مسائل ہم نے آپس میں ڈسکس کیے. اسماعیل صاحب اٹھ کے چلے گئے. یقیناً وہ اس دن میرے آفس آئے. یہ جو مجھے صرف ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ دیا, اور یہ جو دور دراز سے علاقے کیا کہ وہ ہارڈ ایریاز کو قائم رکھنے کے لیے ان کا ایک بل پیش ہوا تھا, میں نے ان کے ساتھ دیا. وہ بل پاس ہوا اسمبلی سے, اور ہارڈ ایریاز بدستور قائم رہے. لیکن آپ یقین کریں میں ذاتی طور اس کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ وہ ابراہیم صاحب کا حکم تھا, مشتاق صاحب کا, حامد صاحب کا, ہم نے ساتھ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہارڈ ایریا سے ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, کہ ہارڈ ایریاز جو دور دراز کے ایریا ہیں انہیں کو ڈکلیئر کریں. وہاں آپ کے پاس پوسٹیں آتی ہیں تو 4-5 آتی ہیں, لیکن پراپر خاپلو میں کالج ہے, ڈگری کالج ہے, مطلب بہت سارے اسکول ہیں, ہائی اسکولز ہیں, یہاں آپ کے پاس پوسٹیں زیادہ آتی ہیں. جب آپ اس ہارڈ ایریا پہ مصر ہوں گے تو آپ کے ہارڈ ایریا کے لوگ جو ہیں یہاں پھر اپلائی نہیں کر سکتے, نہ یہ وہاں جا سکتے. تو وہاں پھر آپ کو اگلے سال ہارڈ ایریاز میں کچھ اور اساتذہ کی کریشن کا انتظار کرنا پڑے گا. تو خیر جب چل گیا تو چل گیا. مطلب زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں, سب نے اس کو پسند کیا, تو ہم بھی اسی روانے میں ہاتھ دھو کے بیٹھے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک ان کی شکایتیں تھیں, اور عموماً ہے ہمارے PC4 یہ پھنسے ہوئے. اس میں مشتاق صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم اس پہ بہت تگ و دو میں لگے ہوئے. میں ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ایک قابل شخصیت ہے, بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اس علاقے سے, اور سب سے اچھی کوالٹی اس میں یہ ہے کہ وہ باتوں کو سمجھتے ہیں. اس دن وہ عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر, انہوں نے ان کو ٹائم دیا تھا, تو رات کو انہوں نے مجھے فون کیا, کہا رائے صاحب میں صبح PM نے ٹائم دیا, میں ان سے ملنے جا رہا ہوں, آپ کے ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ذرا مجھے بتا دیں, میں ڈسکس کر لوں. میں نے کہا جی میرے ایجوکیشن کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ ہے PC4. یہ PC4 وہاں سے ہمیں دلوانا یہ ان کے ہاتھ میں ہے, آپ اسی کا ذکر کریں, یہ ہمیں مل جائے. تو ابھی جس طرح ذکر کیا اسماعیل صاحب نے, جو ہمارے 450 پوسٹیں ہیں یہ ہمارے PC4 کی, وہ ہمیں مل جائے گی. اسماعیل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ابھی واپس آ گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ واپس نہیں آئے. ابھی وہ مرحلے طے کر رہا ہے, یقیناً اس میں لیٹ ہو رہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے تھا, لیکن وہ بھی شاید اس ایسے مرحلوں میں درست نہیں ہے. ان کو جتنا جلدی ہو سکے آنا چاہیے. تو ہم اس پہ پیچھے لگے ہوئے. مجید صاحب بہت انتھک محنت کر رہے ہیں اسی سلسلے میں, ہمارے پوسٹوں کی کریشن میں. آج کل ایک اور پالیسی ہم نے دی, یہ جو HR کی بات کر رہے تھے اور SPS کی بات کر رہے تھے, اب اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ ہم اپنے ADP میں یہ بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے بھی پیسے مقرر کیے. ابھی ہمیں اگر وہ PC4 جو ہیں وہ 4-5 سال انتظار کرنا پڑے تو ہم اپنے ہر پروجیکٹ کے ساتھ اس کا HR ڈالتے ہیں, تاکہ ہم 2-3 سال اپنے پیسوں سے ہی بھی ٹیچرز کو چلائیں. اس وقت تک ہمارا یہ سلسلہ منظور ہو جائے گا. ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نیڈ بیسڈ پوسٹ جو ہے ہمیں نہیں مل رہی. یہ آزاد کشمیر میں ہے. وہاں آج میں منسٹر ایجوکیشن خپلو آیا, میں نے یہاں ایک سکول کا افتتاح کیا, اعلان کیا جناب آپ کے لیے سکول منظور. تو اس کے بعد میرا کام ختم ہوا اعلان کے بعد. اب کام ہمارا شروع ہوتا ہے. جی ہمارے جو صاحبان مقتدر صاحبان ہیں, اختیار ہیں ان کو, وہ پھر یار منسٹر صاحب کا اعلان ہے تو اس میں ہم 2 ٹیچر ان کو سینکشن دیتے ہیں, ان کو گریڈ 1 دیتے ہیں, ان کو بلیک بورڈ اور چیئر فرنیچر دیتے ہیں. وہ وہاں اس پہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے. کسی رینٹ پہ بلڈنگ لے کے وہ میرے اعلان کے مطابق شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایک ایسے ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں ہمیں پہلے بلڈنگ بنانی پڑتی ہے, پھر PC4 بھیجنا پڑتا ہے, پھر اس کی منظوری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے CM صاحب جو ہیں وہ حامد صاحب, مشتاق صاحب تشریف رکھتے ہیں, اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. وہ ہم اس زنجیر اور اس حلقے سے
निकलने के लिए सब मिल के पाँव मार रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं और इनसे निकल आएंगे। और कुछ गुज़श्ता जो अदवार हैं हमारे तालीम में इतने काबिल बयान नहीं रहे, उसका भी एक असर हमारे पूरे एरिया पे पड़ रहा है कि लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, हमारे जो टीचर्स अभी भी मौजूद हैं स्कूलों में, अल्लाह उनको और भी तरक्की दे और भी उनको मौका दे अपने फ़राइज़ अंजाम देने का। बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये कुछ उसमें ये कुछ मेरे असातिज़ा मुझे फ़ोन करते हैं, जी हमारा वो ये इस चीज़ का प्रमोशन का मसला रुका हुआ है, ये रुका है। मैं जब पहली दफ़ा बैठा था अपने सीट पे, तो अब उससे अब तक मेरे 3 सेक्रेटरीज़ चेंज हो गए। हाँ, सेक्रेटरीज़ पे याद आया कि हमारे इकबाल हुसैन साहब रात को मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा जी आप माज़रत कर लें, उनको एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में, तो उनका अपना भी प्रोग्राम था। पहले उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था कि मैं भी आपके साथ आऊँगा, लेकिन रात को वो आए मुझसे मिलने, तो मुझे कहा जी मैं माज़रत चाहता हूँ और उनको भी मेरी माज़रत कन्वे कर दें। उन्होंने आना था, आज वो नहीं आ सके। और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत काबिल शख्सियत हैं, और मैं समझता हूँ कि मजीद साहब जैसे और इकबाल हुसैन जैसे लोग हमें मुयस्सर आ जाएं, हमारे साथ हों इस ट्रेड पे, तो हम इंशाल्लाह अपनी ये सारे मसाइल का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक ये एक मॉडल स्कूल की बात की इस्माइल साहब ने कि हर ज़िले में, हमारी तो ये पॉलिसी है कि हम हर ज़िले में मॉडल स्कूल एक बनाते हैं। अब ये फरमा रहे थे, इनका डिमांड ये था कि हर इसको तहसील लेवल पे ले जाएं। बहुत अच्छा आइडिया है, हमें देखना पड़ेगा, इस पर हम मीटिंग कर लेंगे कि होना चाहिए। बल्कि हम तो इसको यूनियन सतह पे भी चाहेंगे, लेकिन उसके लिए जो हमारे ऊपर से बजट होता है उसको देखना पड़ता है। हम इस पर यकीनन जाके इस पर मीटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद टेस्ट इंटरव्यूज़ की बात हो गई, जो अभी CTSP के ज़रिए हो चुके हैं। अब वो उसका इंटरव्यू जो है वो हमारे गले फंसा हुआ है, उसमें थोड़ा मेरे ख्याल में ये बहुत जल्द आप इसका वो खुशखबरी सुनेंगे, तो अगले शायद नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और अपॉइंटमेंट आर्डर्स हो जाएंगे। सिर्फ अभी उसके जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। साथ साथ मैं मजीद साहब सामने बैठे हुए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। जब मैं आया था पहली दफ़ा, जब मेरे सेक्रेटरीज़ आए मेरे पास, सबसे पहला मेरा उनसे डिमांड ये था, मैंने उनको यही कहा कि चाहे आप जो भी करें, लेकिन ये जो प्रमोशन के फाइल्स हैं ये रुकना नहीं चाहिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका, ये परसों चूँकि मैं बार बार यानी ये सबसे नज़दीक मेरे रहते हैं, सबसे ये न सिर्फ कमरे में मेरे नज़दीक हैं, रहायशी तौर पे दिल के भी बड़े करीब लोग आदमी हैं। तो मैं इनको मैं रोज़ाना तकलीफ़ देता था, बुलाता था, जनाब वो मेरे 14 से ESTs का फ़ाइल है जनाब, वो 16 की फ़ाइल। तो परसों इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, सर वो आपका फ़ाइल जो है वो साइन करके हमने ऊपर भेज दिया। अब इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब आगे भी 1-2 मंजिल हैं, वो इंशाल्लाह जिस तरह मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो भी आप यकीनन आप जल्द आपको ये पता चलेगा कि हमारे ये प्रमोशन का सिलसिला जो है वो भी आगे निकल जाएगा। साथ कुछ हमारे सेब टीचर्स हैं, तो ये सेब जो हैं वो अब थोड़ा सा उस पे सुर्खी आ गई है, पकने वाला है। तो इसमें जो आधे थे वो तो एडजस्ट हो गए, जो एक हमारा उसके मुताबिक अभी 350 रहते हैं। ये 350 भी अनकरीब, क्योंकि मेरी इस पे काफ़ी शफ़क़त महमूद साहब हमारे मिनिस्टर एजुकेशन वफाकी, उनसे भी मुफस्सल बात हो गई। पहले तो सेब डिवॉल्व हुआ था, हमारे ज़िम्मे है, हमने करना है उसको, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत जांच पड़ताल हो रही है। और हमने सीटें मांगी, वफा से हमने सीटें मांगी, उसके आते ही ये जो 350 टीचर्स हैं इनके भी आर्डर्स हो जाएंगे, ये भी एडजस्ट हो जाएंगे। सेब में कोई नहीं बचेगा, सेब में कोई नहीं बचेगा, सब के सब एडजस्ट हो जाएंगे। सिर्फ जो
उमूर रसीदा हैं उनके लिए एक पॉलिसी हम बना रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ हैंड शेक दे के। तो साथ साथ शफकत महमूद साहब से पहली मेरी जब मुलाकात हुई थी गिलगित में, उस वक्त ये बैक्स और नॉन फार्मल जो है ये दो ये वफाक के पास है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये आप मेरे पास रहने दें, जो आपके पास है आप उसी को संभालें। मैंने कहा कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परसों जब मैं गया ईवान सदर में, उनसे फिर मुलाकात हो गई, मैंने फिर पकड़ा उनको। सर वो मेरे बेचारे टीचर जो 8,000 रुपये में काम करते हैं, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। तो मैं हमारे मजीद साहब वाला ने उनको 20,000 यानी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी फ़ाइल भेजी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम आपके टीचर्स का बढ़ाते हैं तो हमें इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बैक्स जो है और ये NCHD ये इस्लामाबाद में भी है और मुजफ्फराबाद में भी है। तो अब परसों जब मैं उनसे मिला तो उसने अपने सेक्रेटरी को बुला के नोट करवाया। उसने कहा जी नहीं, इस दफ़ा मैं क्या अपने वो जो मिनिस्टर में कहा जो उमर साहब जो असद उमर साहब से मैं खुद ज़ाती तौर पर जाके बात करूँगा और इस दफ़ा ये बैक्स को और जो NCHD हैं जो हमारे नॉन फार्मल हैं उनको भी या तो हम डिवॉल्व करेंगे। मैंने कहा जी डिवॉल्व करेंगे तो कुछ पैसों के साथ करेंगे। तो वो कहा जी हम ये भी बहुत जल्द हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। अब रहा हमारे जो जितने प्रमोशन केसेस हैं वो बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरी इस टीम का कि वो बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं और निकालेंगे बहुत तेज़ी से। मैं आखिर में आपका टाइम नहीं लूँगा, दोबारा नज़ीर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब किया और इस प्रोग्राम के लिए दूर दूर से हमारे मिनिस्टर साहिबान तशरीफ़ लाए, मजीद साहब तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और उनसे माज़रत भी चाहूँगा कि मैं घर से निकला था लेकिन सामने एक अरिंद और बादशाह से वफ़द हाज़िर हो गया, तो मैं उनको ये नहीं कह सका कि अगर साथ वाले होते कहते आप कल आ जाए मैं शाम को वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो इतने दूर से आए थे, इनकार नहीं कर सका, वापस गया। दोबारा वहाँ कमरे में बैठ के उनको अटेंड किया, फिर आने तक थोड़ी सी देर हो गई। आप लोगों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। यहाँ आखिर में मैं और आपका टाइम नहीं ले रहा, कुछ बात हो गई थी क्वालिटी ये तादाद ये जो अनअप्रूव्ड स्कूल खोलते हैं, इस पे मेरे हलक़े में भी मेरे ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा होता है और उस सारे प्रोपेगेंडों के जवाब में मैं एक ही जुमला बोलता हूँ, यार अनअप्रूव्ड स्कूल अभी मैंने और खोल दिए। ये हमारी ज़रूरत है, मजबूरी है, हमारे इलाके की मजबूरी है, आज़म खान की नहीं है। इलाके में ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ उन्होंने अभी तक पढ़ाई का नाम नहीं सुना, और वहाँ भी मैं PC1 का वो PC2 का और उसकी बिल्डिंग कंप्लीट होने का इंतज़ार करूँ तो वो बच्चे कभी किताब के मुंह नहीं देख सकेंगे। हम कहते हैं जी कहीं से एक टीचर है, यहाँ 4 हैं तो इसमें से एक भेज दो यार, वो एक स्कूल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस अनअप्रूव्ड स्कूल खोलते हैं तो एक तरह से आप ये सोच लें कि हमने तादाद की तरफ बहुत तवज्जो दी। अभी किसी ने फरमाया था तादाद की तरफ हमने बहुत तवज्जो दी, अब तकरीबन वो अपने किसी सीलिंग तक आ चुका है। अब हमने इस्तेदाद की तरफ तवज्जो देंगे। तो अब तादाद से हट के जब हम इस्तेदाद पे जाएंगे, यानी अब हम क्वालिटी की तरफ जाएंगे, तो मेरे जो टीचर्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे हेडमास्टर्स तशरीफ़ रखते हैं, मेरे डिप्टी डायरेक्टर्स प्रिंसिपल तशरीफ़ रखते हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि आपकी निगरानी भी साथ हो, हम भी आपके साथ हैं। पढ़ाई यकीनन इनकी इस तरह निगरानी तो खैर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अपना फ़र्ज़ अदा करना जानते हैं, उनको एहसास है, क्योंकि वो किसी और को नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी और की खिदमत नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उसी हमदर्दी उसी मोहब्बत के साथ पढ़ाते हैं। मुझे फ़ख्र है मेरे टीचर्स पर कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो आखिर में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने आपसे रुख़्सत लेना है। तो वो शेर, अब ये शेर बल्थी में है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के
आपने जब तक बल्कि एक शेर ना सुनाऊं, वैसे भी हमने शेर सुनाना है तो आप इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये मुराद अली ख़ान मुराद हमारे बस्ती के बहुत मशहूर शायर हैं, मेरे दादे थे। उन्होंने एक गज़ल बहुत मशहूर उनकी गज़ल है, उसका मतलब जो पहले शेर को कहते हैं और उसका मक़ता ये कोई 8 अशार पर मुश्तमिल है। वो सब मैं आपको नहीं सुना रहा, तो चूँकि नज़ीर साहब ने एक शेर मुझे सुनाया था तो मैंने कहा आपके मन में शायद। वो हैदर ख़ान फरमाते हैं जी, ज़ेर गज़ल ची पाज़ी कोलुख सुर लयत नारे। अभी बैठे बैठे ज़हन में आया, ज़ेर गज़ल ची पाज़ी कोलुख सुर लयत नारे शाचन मिसोंग पाज़ी शांगी स्नो लफ्रोद नरे। उनका जो मक़ता था वो इस तरह था कि अदयामी नयो लोपर यखलूम फोज़रे मजहर फोतुक मुराद बाद मुराद ठां जिद्दत नरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।